So today we will learn creative writing. In this class, we will know how to write creatively or write on any topic in a creative manner. In your exam, अनुच्छेद लेखन comes like paragraph writing. अनुच्छेद लेखन को paragraph writing भी कहते हैं ना, तो paragraph writing या अनुच्छेद लेखन आपके एग्जाम में आता है. If you have any essay competition, आपके एग्जाम में essay आता है. If you want to write answer, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, they ask in your exam that write the question. So if you are expert in creative writing, then you can write any answer. Okay, creative writing makes you to write any answer. Okay, any paragraph and any essay. So this creative writing technique. Why was saying that his mother is using his laptop. Okay, focus on the class. Creative writing has the basic technique or basic trick, which is known as the 5W trick. Okay, this 5W trick is the main pillar of the creative writing. And what is this 5W? Let's see it. The 5W or 5 ka concept, which is what, first W, where, when, how, and why. So in this 5W technique, there are 5 words: what, where, when, how, and why. See, in the what, there is 1 W. In the where, there is 1 W in the starting. In the when, there is 1 W in the starting. In the how, there is 1 W in the end, which is the 4th W. And in the why again, it is the 5th W in the starting. अगर हम लोग इनको हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? व्हाट का होता है क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, एंड व्हाई मतलब क्यों. So these are basically 5 questions. 5W are the basically 5 questions you are going to ask about any answer to yourself. You will ask yourself any 5 questions, and that question will be in the format of what, where, when, how, and why. Okay, the 5 questions. And what are those 5 questions? The trick is 5W or 5 ka. 5 का है यहाँ पर देखो. क से क्या, कहाँ में क है, कब में क है, कैसे में क है, और क्यों में क है. So what में क्या होता है देखो. In what, when you ask anything about the topic, what is this topic, then you write introduction in that topic. Then you write introduction. आप उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन या परिचय लिखते हैं, या आप उस टॉपिक का क्या लिखते हैं? डेफिनेशन लिखते हैं. यू राइट डेफिनेशन ऑफ दैट टॉपिक. डेफिनेशन इज द परिभाषा. देन यू राइट वेयर. Okay. कहाँ, कहाँ इज द प्लेस. Sir, I got marks, sir. Okay. Okay, now how much marks you got? Sir, 90. 19 out of 19 Sir, out of lying, 20. sir.
Lying, sir. He's lying. Very good. So, Excellent. so now the long test marks are they didn't come yet, sir. Okay. So you got 19 out of 20. Very good. Yes. So you just continue to attend these classes. You will score like in this manner. Yes, sir. Always. Yes, sir. When, so I was talking about the 5 questions. When is the kab? Kab means Okay, sir. you can Kab write means when. in the kab When. date, okay, or time about that topic. This topic, if there is any specific date about that topic, if there is any specific time about that topic, okay, you can write in the when column. Then you have to write how. You have to ask yourself how. How means kaise. In the kaise, you will write the mechanism. Okay. Mechanism of that anucheda topic, or you have to write the concept of that topic basically. ठीक है. प्लेस यानी कि उस जगह का नाम आप लिखेंगे. वेयर में कहाँ पर, डेट तारीख, टाइम समय, मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट, या जिसको कहते हैं हिंदी में अवधारणा. और लास्ट वाई है क्यों. इन द क्यों यू विल राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट टॉपिक. उसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं, उसका औचित्य क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है, और उसका बेनिफिट क्या है. उस टॉपिक के बारे में यदि हम लिख रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, जिसको लाभ कहते हैं, और उस टॉपिक से लॉस क्या है. बिकॉज यदि उस टॉपिक से हमें कोई लॉस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो भी हमें उस टॉपिक के बारे में जानना चाहिए. सपोज देयर इज ए लॉस, या हानि हो रही, तो भी हमें उस टॉपिक के बारे में जानना चाहिए. एंड द लास्ट यू हैव टू राइट द सजेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सुझाव. ओके, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुझाव या एडवाइस जिसे आप कहते हैं. ओके, और यू कैन राइट द सॉल्यूशंस इफ यू नो द सॉल्यूशंस. ओके, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समाधान. So you can write these things. So suppose there is a topic asked in the exam, you have to write an anuchhed on this topic, or you have to write paragraph on this topic, or you have to write essay on that topic, or you have to write the anything on that topic. You have, if they have asked any question, then you have to write the answer on that topic. Then what you will do, you just remember the 5W concept and start framing the answer around this: what, why, when, where, how, and why. So we can take, for example, a topic like pollution. Suppose we take a topic pollution. In your exam, they have given you the topic, write anuchhed on the pollution. So how you will write? So let's have the pollution. Don't write on the screen. Pollution. In the pollution, ask the 5W. Suppose there is a topic known as the pollution. Pollution is the topic. आपको प्रदूषण एक टॉपिक दिया गया, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रदूषण. So सबसे पहले आप पूछेंगे व्हाट, क्या. तो यहाँ पे आप देंगे पोल्यूशन की डेफिनेशन. व्हाट इज पोल्यूशन, प्रदूषण क्या है. सो पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज हैपेंस इन आवर सराउंडिंग. कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो हमारे सराउंडिंग में होती है और हमारे लिए हार्मफुल है, वो प्रदूषण या पोल्यूशन कहलाती है. ठीक है. डेफिनेशन, जिसको कहते हैं परिभाषा. आपने पोल्यूशन की परिभाषा लिख दी. और
You can write an introduction of the pollution. आप पोल्यूशन का इंट्रोडक्शन और परिचय भी दे सकते हैं कि पोल्यूशन क्या है। हमारे आसपास कूड़ा फैला रहता है, हमारे आसपास लोग लिटर फैलाते हैं जिससे बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, सोसाइटी में बीमारियां होती हैं, साफ सफाई नहीं रहती है, हमारा एम्बियंस खराब होता है, तरह तरह के हेल्थ हैजार्ड होते हैं। आप इंट्रोडक्शन दे करके ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप जो है क्या कर सकते हैं कि डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो परिचय, जैसे आप अपना परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माय नेम इज दिस, माय फादर नेम इज दिस, आई लिव हियर, आई स्टडी इन दिस क्लास। इन द सेम वे आप पोल्यूशन के बारे में एक पैराग्राफ, सिंपल एक पैराग्राफ जो है आप इंट्रोडक्शन दे करके कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, द सेकेंड W you are going to ask is the where. पोल्यूशन कहाँ है? सो यू नो पोल्यूशन की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। पोल्यूशन आपके एयर में है, पोल्यूशन आपके वाटर में है, पोल्यूशन आपके सॉइल में है, ओके, पोल्यूशन आपके लैंड में है, ई वेस्ट पोल्यूशन है, ओके। अब तो ओशन में पोल्यूशन है, स्पेस में पोल्यूशन है, जो सैटेलाइट बेकार हो जाते हैं स्पेस में पोल्यूशन फैला रहे हैं। ई वेस्ट आपका हो गया, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया। लैंड पोल्यूशन हो गया, जहाँ पे हम लैंड फिल्स डालते हैं, कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा डालते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट डालते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन हो जाता है। सॉइल में पोल्यूशन भी किससे आता है? पेस्टिसाइड से। जो हम लोग पेस्टिसाइड खेतों में छिड़काव करते हैं क्रॉप के ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं कि क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस हो, पेस्टिसाइड डालते हैं ताकि जो हार्मफुल पेस्ट वो खत्म हो जाए, उससे सॉइल पोल्यूटेड हो जाती है। वाटर में इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो होता है वो बह के जाता है, वो पोल्यूशन करता है। डोमेस्टिक सीवेज जो जाता है, घर का जो खराब गंदा कचरा जाता है, वो वाटर पोल्यूशन पैदा करता है। एयर आप तो जानते ही, आप एयर से पोल्यूशन कैसे होता है, ऑटोमोबाइल से होता है, गाड़ियों से, आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, इंडस्ट्रियल चिमनी से धुआं निकलता है, उससे तरह तरह के कॉजेज हैं जो एयर पोल्यूशन फैलाते हैं। तो कहाँ कहाँ पोल्यूशन है आपका? एयर, एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, ई वेस्ट। ओशन, ओशन में पोल्यूशन आप अच्छे से जानते हैं कि चेन्नई में सी शोर पे कितनी ज़्यादा लैंड फिल्स है, कितना जो है लोग खाते हैं वहाँ पे, वो मेज खाएंगे, भुट्टा खाएंगे, वहीं गाड़ के चले जाएंगे, पॉलीथीन फेंक के चले जाते हैं, ओके। स्पेस आप जान ही रहे हो कि तरह तरह स्पेस वॉर तक की बात हो रही है, स्पेस में तरह तरह के सैटेलाइट डाले जा रहे हैं, उनका खत्म हो जाता है टाइम पीरियड, तो उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है। अब हुआ आपका when. Now we will go for the when. Third, this is the first what, this is second, and this is the third. When pollution occurs, okay. एक तो आप ये बता सकते हो पोल्यूशन कब होता है? जब शाम को। एयर पोल्यूशन ज्यादा कब होता है? ट्रैफिक आवर्स में। ट्रैफिक आवर्स में एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है। व्हेन ऑफिस से लोग आते हैं और जाते हैं, तब क्या होगा? एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा। डोमेस्टिक सीवेज सुबह के वक्त ज्यादा निकलता है, तो वाटर पोल्यूशन उससे ज्यादा होगा। सॉइल पोल्यूशन कब ज्यादा होगा? जब सीड को इम्प्लांट किया जाएगा, फसल ग्रो करेगी, उस वक्त फार्मर्स डालते हैं पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। फिर जब क्रॉप ग्रो करती है, तब क्रॉप के सीजन में फर्टिलाइजर डाला जाता है। लैंड पोल्यूशन तो एवरी टाइम होता रहता है, क्योंकि ये सीड सोइंग सीजन में होता है, ये सीड सोइंग सीजन में होता है। फिर ई वेस्ट, ई वेस्ट अब इस समय रेगुलर वो हो गया है कि लोग मोबाइल खरीदते जा रहे हैं, इसको करते चले जा रहे हैं। ओशन, ओशन में जब भी ऐसी एक्टिविटीज होगी, जैसे फिजिकल एक्टिविटी हुई या इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी हुई, या लोगों ने कोई वॉर एक्सरसाइज करी, या बहुत ज़्यादा पिकनिक मनाई गई ओशन के सी शोर पे, तब जो है आपका पोल्यूशन होगा। स्पेस में जब भी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होगी, लोगों में कंपटीशन बढ़ेगा कंट्रीज के बीच,
इनको अपने और रिसोर्सेज चाहिए होंगे, स्पाइंग करनी है, तो तरह तरह के सैटेलाइट छोड़े जाएंगे और बाद में उनका जब टाइम खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, स्पेस पोल्यूशन फैलाएंगे। अब हम लोग जाते हैं फोर्थ की तरफ, हाउ इट हैपेंस, द फोर्थ W, हाउ पोल्यूशन हैपेंस। तो पोल्यूशन के होने के 4 रास्ते हैं, कई रास्ते हैं बेसिकली। हाउ इट हैपेंस थ्रू द एयर, एज आई सेड, एयर, वाटर एंड लैंड। और ये कैसे होता है, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो होती है, जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, जिसको कहते हैं हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाकलाप। इसकी वजह से एक तो मेजर रीजन होता है, दूसरा नेचुरल भी रीजन होता है। जैसे नेचुरल रीजन में क्या होगा, कैसे नेचर की वजह से, कैसे, हाउ नेचर विल कॉज द पोल्यूशन, लाइक फॉरेस्ट फायर। ओके, फॉरेस्ट फायर लग गई तो उससे लैंड पोल्यूशन भी होगा और एयर पोल्यूशन भी होगा, उसका जो स्मोक होगा वो जाएगा। ठीक है। अब नेचुरल से और क्या हो सकता है, जैसे सुनामी आ गई, आपका अर्थक्वेक आ गया, इससे क्या होगा, रिवर्स का फोर्स चेंज हो जाएगा, चारों तरफ सब कुछ कियास हो जाएगा, इसकी वजह से भी पोल्यूशन हो जाएगा। फ्लड की वजह से भी पोल्यूशन हो जाता है, जब फ्लड का वाटर रिसीड करता है तो तरह तरह की बीमारियां और गंदगी फैल जाती है। तो नेचुरल मेथड भी है पोल्यूशन फैलने का, और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी हैं पोल्यूशन फैलाती हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में जैसे हमने बताया कि इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री क्या करेगी, पोल्यूशन, इंडस्ट्री है या उसका इफ्लुएंट है, अगर वो ट्रीट नहीं किया गया तो वो जो है क्या करेगा, पोल्यूशन फैलाएगा। ऑटोमोबाइल हो गए जो हम लोग चलाते हैं, वो क्या करेगा, वो भी पोल्यूशन फैलाएगा। तो और भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को आप सोच सकते हैं, जैसे आपने कूड़ा फैला दिया, या आदमी जो क्या करते हैं कि जगह जगह न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहे हैं ह्यूमन बींग्स, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के इफ्लुएंट से भी वाटर पोल्यूशन बहुत हो रहा है, रेडिएशन वाला पोल्यूशन बहुत हो रहा है। तो लॉट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द pollution. So now we will go for the most important thing, the why, the significance. See, we live in harmony. यहाँ हम लोग क्या करेंगे, significance, loss के बारे में जानेंगे और solution के बारे में जानेंगे इस 5W पे, और सजेशन के बारे में जानेंगे। तो हमें लॉस क्या क्या हो रहा है और सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमें पोल्यूशन पड़ना चाहिए। ठीक है, हेल्थ हजार्ड हो रहा है, health hazards are there, health hazards are in Okay, the sir. diseases, okay, death। फिर हो रहा है कि इन्वायरमेंट डेटियोरेट हो रहा है, मतलब जो पर्यावरण है उसका क्षरण हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि एनिमल और प्लांट्स की डेथ हो रही है, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, मतलब द वर्ड बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट on the earth is known as the biodiversity of the earth. So when the plants and animals are dying, then the biodiversity loss, or plants or animals की डेथ होगी ड्यू टू पोल्यूशन। इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सजेशन क्या क्या हो सकता है। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि वी शुड हैव हार्मोनी विद द नेचर, हमें नेचर के हिसाब से हार्मोनी रखनी चाहिए, हार्मोनी विद नेचर, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द नेचर। फाइन।
then we should go for the 3R concept. There is a 3R concept: reuse, reduce, or recycle. So first we can say the first is the reduce. Okay, the first is reduce. So reduce the consumption. Reduce the what reduce? Reduce the consumption. The second is reuse. Reuse means if thing can be reused, then reuse it again. And recycle means don't dump it into the place where it cannot be recycled. To recycle, we have the two kinds of dustbin, the biodegradable and non-biodegradable. Okay, the biodegradable dustbin is kept into the green, and this non-biodegradable dustbin is kept into the red format, somewhere yellow. So this red and green division of the garbage can help in the recycling of the garbage or dust. So we can apply 3R concept to save the resources. We should go for the conservation of natural resources. Conservation of नेचुरल रिसोर्सेज. हमें नेचुरल जो प्रकृति से हमें मिले हुए हैं, जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का, उनको हमें बहुत वाइजली यूज करना चाहिए. ठीक है. और अगर हम इसको समराइज करें तो हमें जो है बहुत ही सोच समझकर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए और नेचुरल टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए अपनी लाइफ स्टाइल में. पेपर का यूज कम करना चाहिए. जैसे हम लोग कॉपी यूज करते हैं, उसको फाड़ फाड़ के उसकी कभी जहाज बनाते हैं, कभी अननेसेसरी पेपर यूज करते हैं. आप जानते हो कि पेपर यूज करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है. वी हैव टू कट ट्रीज टू यूज द पेपर्स. So if you reduce the use of paper, okay, then less tree will be cut and our environment will be protected. अगर आप कम पेपर यूज करोगे तो पेपर की डिमांड कम होगी. पेपर की डिमांड कम होगी तो ट्री कम काटे जाएंगे. ट्री कम काटे जाएंगे तो ग्रीनरी इंक्रीज रहेगी. हमारा फॉरेस्ट कवर अच्छा रहेगा, जो कि 33% होना चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से, कि वी शुड हैव 33% फॉरेस्ट कवर एंड मोर देन 65% फॉरेस्ट कवर इनटू द हिल एरिया एंड 33% इनटू द लैंड एरिया. इतना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए. वो हम प्रिजर्व कर पाएंगे. इससे हमारी जो है ग्रीनरी मेंटेन रहेगी और हम पोल्यूशन को रिड्यूस और चेक कर सकते हैं. सो यू कैन सी ये 5W कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है. वी कैन गो बैक एंड सी we have learned the creative writing, how to write the creatively by the 5W trick. You can write any paragraph, any essay. Why and how this will be happen? It will happen through the 5W और 5 का concept. जैसे what means क्या, where कहाँ, when कब, how कैसे, why क्यों. what में आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन यानी परिचय और डेफिनेशन यानी परिभाषा. where में आप लिखेंगे कहाँ, प्लेस है उस जगह का नाम. when जब आप क्वेश्चन करेंगे अपने आप से तो यू विल आस्क कब. तो कब में क्या आएगा? डेट आएगा, टाइम आएगा. ओके. और यू कैन राइट फ्रीक्वेंसी ऑल्सो. उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. हाउ में कैसे, मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे आप. और वाई में आप पूछेंगे कि क्यों, या कि आखिर हम लोग क्यों जानना चाह रहे हैं, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं. तो उसका सिग्निफिकेंस या औचित्य और बेनिफिट, लाभ, लॉस, हानि, ये सब जानेंगे हम लोग. सपोज हम अगर एग्जांपल लेते हैं प्रदूषण, हमने एक टॉपिक लिया, पोल्यूशन टॉपिक लिया, तो हम उसमें जानेंगे व्हाट क्या है, उसकी डेफिनेशन देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे. वेयर देखेंगे कहाँ पे पोल्यूशन होता है. एयर पे होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, लैंड होता है, ई वेस्ट होता है, ओशन होता है, स्पेस होता है. देन वी विल आस्क द क्वेश्चन व्हेन. सो द हाईएस्ट एयर पोल्यूशन इज एट द ट्रैफिक आवर्स और पीक आवर्स ऑफ द ऑफिस गोइंग पीपल. जब सीड सोइंग सीजन आता है तब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को यूज किया जाता है. जब क्रॉप मैच्योर होती तो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं.
हाउ के सेक्शन में हम जानेंगे कि एयर वाटर लैंड में कैसे पोल्यूशन होता है, एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी मानवीय क्रियाकलाप से होता है, और नेचुरल या फॉरेस्ट फायर से होता है। तो हमें लिंक मिलते जाएंगे, कीवर्ड्स मिलते जाएंगे, हमें आगे लिखना क्या है। वाई में हम लोग पूछेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस और लॉस क्या है, सोल्यूशन क्या है, सजेशन क्या है। तो हेल्थ हजार्ड पहली बात, फिर इन्वायरमेंटल डिटीरियोरेट होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, और हमने जो अभी डिस्कस किया। तो इस चीजों से आपको क्या मिलेगा कि कीवर्ड्स मिलते जा रहे हैं, हेल्थ हजार्ड मिल गया, इन्वायरमेंट डिटीरियोरेट हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई। आपको कीवर्ड जैसे होता है ना एग्जाम में, कोई जरा सा कोई हिंट बता दो, हेडिंग बता दो मुझे, जरा सा हेडिंग बता दो, टेल मी द हेडिंग एंड आई विल राइट इट, देन योर माइंड विल वर्क, यू जस्ट गॉट द हेडिंग एंड यू विल राइट एंड एक्सप्लेन दैट थिंग। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एक हेडिंग मिल गई, नेचुरल और फॉरेस्ट फायर एक हेडिंग मिल गई। यू विल थिंक, your mind will go on logical pathway and you will write any creative thing. So I think you people understand. Okay.